So today's the topic is biodiversity. ठीक है, the word biodiversity. First we have to know what is biodiversity, what is the concept of this biodiversity, or what is the scope of biodiversity, right? So in this topic, first we have what we learn in this unit. I will give you the introduction. This is the intro. First one part is the introduction. In introduction, what is the topic comes, like a concept, like a scope, what is the definition that come in the introduction part. Second one is the level of the biodiversity. Level of biodiversity, there are three types of biodiversity is there: genetic, species and ecosystem diversity. Then come to the biogeographical classification in India. Okay? Then come to the values of biodiversity. What is the value of biodiversity? Why we use biodiversity? So this is the some points are there: consumption use value, productive use values, social use values, ethical use values, aesthetical use values, option values. And the next is the biodiversity at global, national and local level. Okay, so this is the part. And next is India as mega diversity nation, hotspot at biodiversity. Hotspot diversity is an important topic in this. Okay. Threats to biodiversity, habitat loss. What is the loss in habitat? Poaching of wildlife, man-wildlife conflicts, endemic species of India, and the last is the conservation of biodiversity. In conservation of biodiversity, there are two types of there. N and X. N means situ conservation of biodiversity, and X means situ conservation of biodiversity. Right. So these are the content what we learn in this unit, that is biodiversity, right? Next is, first is what is biodiversity, what is the meaning of the biodiversity. Okay, biodiversity means combination of two words like bio and diversity, right? Bio means life form and diversity is variety, right? In this picture shows bio means life and the diversity in variety. That means it is defined as the variety and variability among all group of living organisms and the ecosystem in which they occur. So this is the definition of the biodiversity. So biodiversity basically होता क्या है कि लाइफ, जिस जिस चीज़ में लाइफ है, जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वैरायटी मतलब डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, वैरायटी मतलब डिफरेंस, बहुत सारा, बहुत डिफरेंट तरीके का, है ना? तो और हम ये सब बायोडाइवर्सिटी कहाँ आएगी? नॉर्मल सी बात आएगी अपनी इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम की जब हम बात करेंगे तो इकोसिस्टम पे की बात करने पे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर. Without abiotic and abiotic factor, ecosystem does not exist. Okay, so this is the variety and variability among all group of living organisms and the ecosystem in which they occur, right? So this is the next is biodiversity. This is the also part of the introduction. Variety of life found in a particular region. एक पर्टिकुलर रीजन में हमें लाइफ फॉर्म की कितनी वैरायटी देखने को मिलती है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. एक पूरे इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर रीजन मतलब इसीलिए बोला गया है कि एक इस इकोसिस्टम, एक रीजन में हमें कितनी वैरायटी मिल जाती है लाइफ फॉर्म. ठीक है, अगर हम ऑल ओवर अर्थ देखें तो 1.7 to 1.8 मिलियन और आई थिंक उससे भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे. ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ. ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिनके बारे में हमने देखा है और जिनके बारे में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बारे में हमने
देखा भी नहीं होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऐसे साइड में होते हैं जहां हमें मालूम भी नहीं चलता है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिन्हें मैंने देखा नहीं होता है, या ऐसी ठंडी एरिया में होते हैं, या ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फाउंड होते हैं कि जहाँ हर जगह आप माइक्रोस्कोप लेके नहीं घूम सकते हो ना, कोई ऐसा ग्लास लेके नहीं घूम सकते कि हर जगह आप उस चीज़ को देख सको, है ना। तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें मालूम है, और कहीं ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके बारे में हमें अभी मालूम भी नहीं है ना। तो these organisms are different from each other in shape, size, color, pattern, internal structure, habitat, nutrition, behavior, external appearance, etc. And these are all are interrelated. ना ये कि ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पूरे ऑल ओवर अर्थ में या एक रीजन में, ये कितने डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से इन शेप, साइज, कलर, पैटर्न, बिहेवियर, न्यूट्रिशन, एक्सटर्नल अपीयरेंस और इंटरनल एक्सपीरियंस, हैबिटेट, है ना। तो बिल्कुल अलग है, लेकिन दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। मतलब ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि फूड चेन पढ़ा था हमने, ठीक है। तो फूड चेन क्या था कि जब भी हम फूड चेन की बात बच्चे करते थे, तो फूड चेन में क्या होता था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, उसे एनर्जी मिलती है, फिर दूसरा तीसरे को खाता है, उसको एनर्जी मिलती है, और सो ऑन। तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर मान लो एक जो दूसरे को खाता है वो नहीं खाएगा, तो जो नहीं खा रहा है वो क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। और हमें मालूम है कि हर चीज़ का एक लिमिटेड होता है, इसीलिए हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। अगर वो चीज़ हमें, वो उसको नहीं खाएगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और नॉर्मल सी बात है वो क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि हर चीज़ का मेंटेनेंस ज़रूरी है, ठीक है। जैसे सपोज ऐसा समझो कि अपना ग्रास होता है ना, ऐसे ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल, ग्रास होता है, अगर उसे ग्रास ऊपर नहीं ईट करेगा या और सीट नहीं करेगा, है ना, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद कितना इंक्रीज हो जाएगा, बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। या फिर अगर हम एक जेब्रा की बात करें, तो टाइगर उसे खा लेता है, ठीक है, या लायन उसे खा लेता है। तो अगर वो उसको नहीं खाएगा, एक तो उसकी ज़रूरत है, उसको खा रहा है, और अगर उसको नहीं खाता तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, एबंडेंट क्वांटिटी हो जाती है अर्थ में। तो नेचुरल है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको वो कंट्रोल करे, है ना। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी एक दूसरे पे डिपेंड इसीलिए है कि वो उसको कम कर रहा है या उसकी कैपेसिटी, है ना। तो ये इसीलिए एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, या एक दूसरे से कोरिलेट करता है, इंटर रिलेटेड होता है। क्योंकि अगर एक भी डिस्टर्बेंस, एक भी कम या ज़्यादा कोई चीज़ कर देता है, तो नेचुरल है कि उसमें वो चीज़ कमी हो जाती है, ठीक है। देन कम टू दी कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ चुके थे कि डेफिनेशन क्या है, पर फिर भी लेटर ऑन हम लोग पढ़ते हैं what is the concept of the biodiversity. So this is the combination of the two words, that is biological and diversity. Biological means life form and diversity is variety, यानी कि that means variety of life found on earth। यानी अर्थ में हमें लाइफ की कितनी वैरायटी मिलती है, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय वोल्टर इन यूएस 1985। ये जो बायोडाइवर्सिटी का टर्म था, ये प्रोड्यूस किसने किया, प्रोड्यूस हुआ है अपना 1985 में, वोल्टर इन रॉसन, ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 85 में ये लॉन्च किया कि इसको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। कंप्राइजेस ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल प्रोसेस। अब हम बात करें कि व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट इज इकोलॉजिकल प्रोसेस, है। सो इकोसिस्टम when the combination of the plant, animal and the environment, plant plus animal plus environment, that is the combination is called the ecosystem, ठीक है। when we about talk about the ecological process, ऐसा प्रोसेस जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके इन्वायरमेंट के साथ लिंक कर सके, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक
है। इकोलॉजी प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट के साथ लिंक कर सके। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। First one is the combination of the two words, that is biological and diversity. Second one is the variety of life on Earth, term coined by the Walter in Russell 1985, and all over the concept comprises of the all species of plants, animals, microorganisms, and the ecosystem and the ecological process. ठीक है. Now come to the definition. What is definition? Biodiversity can be defined as vast array of species of microorganisms, algae, fungi, plants, animals occurring on Earth, either in terrestrial or aquatic habitat, and ecological complexes of which they are part. Okay? Biodiversity can be defined as vast. Vast मतलब बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा, है ना. एंड एरे इज द कलेक्शन. ठीक है, एरे मीन्स कलेक्शन. किसका कलेक्शन? स्पीशीज का. और अब स्पीशीज में क्या क्या हो सकता है? अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एल्गे हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है. ठीक है, विच वे अकरिंग ऑन अर्थ. ठीक है, आइदर इन द टेरेस्ट्रियल और द इक्वेटिक. आइदर इन द टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मीन्स land. Terrestrial means or related to land, which is suited in land. Or aquatic habitat means which is related to water body. Okay, so this type of microorganism or vast array of species occurring on earth, either in the terrestrial or the aquatic habitat, and the ecological complexes of which they are part. In this definition, what is the meaning of the ecological complexes? Okay? Ecological complexes is the combination of ecosystem and ecological process, right? Ecological process and ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem is the combination of biotic and abiotic, or we can say is the combination of the plant, animal, and the environment. And ecological process in which microorganisms are linked with their environment. So, ecosystem and ecological progress or a process. This is the combination is called the ecological complexes, right? And this now come to the scope. What is the scope of the biodiversity? Why we learn this biodiversity? Okay, so in this scope, medicinal field, industry, research, environment conservation, and the job opportunity. These five topics are in this scope of biodiversity. First, we talk about the medicinal field. मेडिसिनल फील्ड, जब बच्चे हम मेडिसिन फील्ड की बात करते हैं, मेडिसिनल फील्ड मतलब जहाँ मेडिसिन से रिलेटेड हम कोई बात कर रहे हैं. ठीक है, जहाँ पे मेडिसिन बन रही है. तो मेडिसिन कैसे बनती है? नॉर्मल सी बात है, मेडिसिन हमारी किससे बन रही है? प्लांट से बन रही है. और या फिर मेडिसिन ऐसा पार्ट हो गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और आज का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, मेडिसिन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, ये सबको समझ में आ रहा है. तो मेडिसिन जो है अपना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मेडिसिन अपनी बनती किससे है? या तो किसी एनिमल से प्लांट से बन रही होती है, एनिमल्स, यानी कि दिस इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. यानी बायोडाइवर्सिटी से ही तो रिलेटेड है कि डिफरेंट टाइप्स हमें मिल रहा है, तभी हमारी मेडिसिन बन रही है. जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, इंडस्ट्री का जो भी अपना रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है? रॉ मटेरियल आ रहा है अपना नॉर्मल सी बात है प्लांट और ट्री से. और जब भी हम प्लांट और ट्री की बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो इन दी फील्ड ऑफ biodiversity. So here also biodiversity has to be done. Then come to the research. अभी ऐसे स्पीशीज और ऐसे प्लांट्स जो अपने अर्थ पे बिलोंग करते हैं, अर्थ में अगर हैं, हमें बहुत सारे ऐसे स्पीशीज के बारे में मालूम भी नहीं है और हमने उन्हें देखा भी नहीं है. ठीक है, तो हम उसको कैसे सर्च कर सकते हैं उनके बारे में, या उससे हमें और क्या ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो इससे रिलेटेड हम पढ़ सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिसर्च करनी पड़ती है. ठीक
ठीक है। तो अगेन कम टू दी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देन कम टू दी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। What is environment conservation? Environment conservation means एनवायरनमेंट को हमें कैसे बचाना है, कैसे कंजर्व करना है। नॉर्मल सी बात है, अगर हमने मेडिसिन बना ली, इंडस्ट्रीज का भी काम कर लिया, रिसर्च काम कर लिया, तो रिसर्च में हमें ये चीज़ भी पढ़नी है ना कि अगर कौन से प्लांट्स या ट्री से हमें मेडिसिन मिल रही है या उसका और आगे क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अगर हम उसको सेव करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, क्योंकि विदाउट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी हैज टू बी डैमेज, ओके। एंड द लास्ट इज द जॉब अपॉर्चुनिटी। अब हम अगर बात करें तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ से आई, ठीक है। कि अभी हमने तो बात कर ली मेडिसिन की, बात कर ली इंडस्ट्री की, बात कर ली रिसर्च की, बात कर ली एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की, बात कर ली। अब हमारी जॉब की कैसे बात आती है, तो बच्चे जॉब की ऐसी बात आती है कि जब भी हम बात करते हैं तो जो जॉब हमें कैसे मिल रहा है कि सरकार हमारी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए। तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब भी हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मतलब जॉब तो नॉर्मल है कि फिर हम वहाँ पे हम लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगेन हम टू दी बायोडाइवर्सिटी, तो दिस इज द स्कोप ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो in this topic we have what we have learned, what is the biodiversity, what is the definition of the biodiversity, what is the scope of the biodiversity, and what is the concept of the biodiversity. Biodiversity means, and this is very important topic students, biodiversity, bio means life and the diversity is the variety, different form of variety are present in the earth, right. So next come to the level of biodiversity. आज मैं सिर्फ तुम लोगों को बायोडाइवर्सिटी जो लेवल्स है उसका केवल इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। थ्री टाइप्स levels are there present in the biodiversity, that is genetic diversity, species diversity, and the ecosystem diversity, right. uh, Genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity, right? Genetic diversity, what is genetic diversity? Genetic means carrier of heredity, है ना? और diversity means variety, different variation of genes within species, है ना? Variation of genes within species. और स्पीशीज का मतलब क्या होता है, विद इन स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर सके, इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोड्यूस करें, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज. सो जीन्स इज द कैरियर ऑफ द हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू offsprings and contain information that determine the characteristics of each organism. ठीक है. अब देखो वैरायटी में हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे जेनेटिक वैरायटी की बात करें हम, तो जेनेटिक में वेरिएशन, जीन्स में वेरिएशन मिलेगा, ठीक है. स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो स्पीशीज में वैरायटी मिलेगी आपको कि स्पीशीज में कितने डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हो सकती है. और लास्ट आता है अपना इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम already we have discussed what is ecosystem, and when we talk about the ecosystem diversity means diversity in the different ecosystem, and when we talk about the ecosystem, that is biotic components and abiotic components. So this is the topic of the biodiversity which we have covered.